सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ कम्युनिकेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हमारी गाइडेंस सीरीज़ चल रही है एंड आज के लिए हमारी गाइडेंस सीरीज़ में एक छोटा सा ट्विस्ट है। बिकॉज आज जो हमारे गेस्ट हैं वो कोई लॉयर या एडवोकेट नहीं है, वो एक कंपनी सेक्रेटरी हैं। हिज नेम इज़ मिस्टर चेतन गुप्ता। इनको 15 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुके हैं और इनकी कई बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में स्टैंडिंग है, लाइक सेबी, NCLT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उधर इनका बहुत रेगुलरली कंसल्टेशन भी रहती है और स्टैंडिंग्स भी रहती हैं। सो वेलकम सर टू आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस योर स्पेशियस टाइम। Thank you so much for conducting this interview from my side. Whatever the support you require, I'm always available to that. थैंक्स अ लॉट सर। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे रहेगा कि बीइंग अ CS, हाउ इज़ योर वर्क कनेक्टेड टू द लीगल फील्ड? Yeah, definitely for a company secretary, that is also a part of a legal, if you say the company secretary work in a corporate, so that role is very much in most of the corporates or MNC, you can say कि company secretary or legal departments are common. That is headed by one of the company secretary. He has a lawyer degree also, so all the departments, company secretary and legal departments work hand in hand together only. Some peoples take care of the secretarial compliances and the other legal team are taking care of the other compliances. Because if you say for a corporate, for any entity in India, there are number of laws that is applicable to a company or any corporate. Yes sir. So that there is a need for a person who understand the law, who interpret the law, who find out what are the requirements of the law, what is the expectation of the government in order to comply, and in order to comply that law. So that team is very much required in a corporate. So both company secretary and lawyers that are working as a team in order to protect the interest of the corporate and to give the value addition in terms of the company is fully compliant. That will help in building the brand value of that company, and that will give a good confidence to the stakeholders that the company is compliant. In today's scenario, the foremost investors, if there is any investor coming or the shareholder, stakeholder, they are demanding the company should be compliant. Yes sir. The company will be compliant only because of that legal fraternity that will take care of all the compliances. Legal compliance. Legal compliances, everything is legal. If you say every activity, whenever you are drafting a letter or any communication on behalf of the company to any stakeholders, to any government authorities, so everything come under the umbrella of legal. And CS is also a part of legal. That legals, basically company secretary will take care of legal compliance only with respect to some of the acts, like Companies Act, SEBI, FEMA, LODR, listed companies. So these mainly they have studied in their criminal law, civil law, they have studied. Yes, but primarily they are taking care of all the corporate law that is applicable to a company. Okay, so basically the lawyer will interpret and the company secretary will take care of the compliance. He will also help to understand what are the compliances is required. Okay. The lawyer have a wide exposure than I would say a company secretary is having a knowledge on a practical grounds. They have a knowledge of a 4, 5, 6, 7, 10 laws. Okay. But in India, if I would say if there are tools available who say कि there are more than 5,000 laws that are in India that is prevail for any entity, depends upon the geography, depend upon the business area in which they will operate. Yes sir. So no one person can have the knowledge of all the laws. Everybody has their specialized area. So I would say the company secretary have a specialized area in some of the fields, and lawyer might have the specialization in other areas. That will help together the company to comply the all laws which are applicable to a company. Okay, so that is how a CS will relate itself to a
legal field. हाँ. So, sir, since being in a corporate legal framework, you must have handled some legal cases as well, different kind of legal cases. What were your experience, or what were the different kinds of cases you have? Basically, if I would say in a corporate, whenever company is running, there are chances कि litigations arise होती हैं, Yes, कहीं sir. कोई approval process है, वो सब चीज़ें आती हैं कंपनी की वर्किंग में लाइफ साइकिल के अंदर. तो उसके अंदर मतलब कभी किसी फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट ने किसी डेटर का चेक बाउंस मतलब हो गया कंपनी में 138 का करना, क्योंकि कॉर्पोरेट के अंदर इट इज़ अ आर्टिफिशियल एंटिटी, तो एवरीथिंग इज गवर्न थ्रू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो कोई भी चीज़ का अगर लीगल, या तो हम एज अ प्लेंटिफ है या हम एज अ डिफेंडेंट है. कंपनी के अंदर अगर कोई भी चीज़ में प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, एवरीथिंग शुड बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड. तो बोर्ड में ले जाने का जो रास्ता है वो कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू जाता है बोर्ड में. कंपनी सेक्रेटरी टेक केयर कि हाँ ये जो अगर लीगल केस है इसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या अल्टरनेटिव्स हैं, वो एक सिचुएशन बोर्ड को बनाकर देता है विद द हेल्प ऑफ अ लॉयर. डेफिनेटली वट एवर बी द जो आर्ग्यूइंग काउंसिल है जो केस को फाइट करेंगे, वो क्या उनकी ओपिनियन है अबाउट दैट केस, तो वो ओपिनियन को पास ऑन करता है टू द बोर्ड. दैट विल हेल्प इन मेकिंग द डिसीजन. फिर जो डिसीजन होता है उसको आगे कम्युनिकेट करना, उसको मॉनिटर रखना, क्योंकि एक अगर मैं लिस्टेड कंपनी की बात करता हूँ इन टर्म्स ऑफ द सेबी, तो देर आर सर्टेन गाइडलाइंस विच सेज द बोर्ड हैज इन एवरी बोर्ड मीटिंग the status of all the legal cases in which company are a plaintiff or a defendant that should be present before the board. So for compiling all the legal cases, the company secretary will take the input from all the lawyers who are handling before the authorities, Okay. and prepare a summary kind of for the board to update ki what is happening, what are the high risk area, what are the medium, what are the low risk area. Okay. So in that scenario, when I am practicing as a company secretary from the last 15 years, Yes, sir. so there are number of clients in which I am helping them to prepare the agenda. Okay. For preparing the agenda, I have to sit with the lawyer Yes, sir. to understand the case, to prepare the summary from the perspective of the board of directors. I have to say, if any lawyer has a view on the case, ki what are the weakness, what are the strong point, तो I have to look at from the owner perspective कि ऑनर को उसके अंदर क्या चीज़ लेनी है, कोई ऑप्शंस हैं, क्या वर्स्ट केस सिनेरियो है, क्या बेस्ट केस सिनेरियो है, ताकि ऑनर उसके ऊपर डिसीजन ले सके. तो इसमें नंबर ऑफ केसेस हमारे पास जो आते हैं ड्यूरिंग माय लाइफ साइकिल की, अगर कंपनी जिनमें पार्टीज हैं, कोई लैंड को लेके डिस्प्यूट है, कोई प्रॉपर्टी को लेके कोई भी डिस्प्यूट है, इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट अमंग द शेयर होल्डर्स, इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट अमंग द डायरेक्टर्स, तो दिस काइंड ऑफ केसेस नॉर्मली कंपनी रिसीव विद रिस्पेक्ट टू द कस्टमर आल्सो, फॉर एनी क्लाइंट्स एज वेल. फाइनेंशियल डिस्प्यूट है, कोई क्वालिटी को लेके डिस्प्यूट है, तो वो डिस्प्यूट कंपनी के फंक्शंस में आते हैं. तो डेफिनेटली हर उसके अंदर चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तक भी केसेस जाते हैं कंपनीज के कि कहीं कोई टैक्स की डिमांड है, तो वो जब हमें चैलेंज करना होता है तो हमें कोर्ट ऑफ लॉ में जाना है, तो लॉयर की हेल्प चाहिए. उस सब्जेक्ट का हम डोमेन एक्सपर्ट लेते हैं. यस सर. तो लेकिन उसके साथ में इंटरेक्शन करके हमें कंपनी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है. तो वो मेरा रोल होता है कि बोर्ड को जो पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उन तक फ्लो करे, ताकि वो एक वाइज डिसीजन ले सके फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंपनी इंटरेस्ट. ओके, सो बेसिकली सीएस एक ब्रिज बनेगा लॉयर एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. क्योंकि मतलब बोर्ड के लिए ना, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मीट ईच एंड एवरी लॉयर एडवोकेट टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव. तो कंपनी सेक्रेटरी एक ब्रिज का काम रोल प्ले करता है डेफिनेटली, कि जिसमें वो थोड़ा सा, क्योंकि उसकी लीगल बैकग्राउंड है, क्योंकि ऑलरेडी उसने कुछ लॉ पढ़कर आया, तो वो थोड़ा सा लॉयर के साथ में डीप में जाता है in order to understand ki what are the options available, what are the pros and cons, and prepare that summary for the board. Okay.
सो मतलब इसमें आप लोगों का लीगल एक्सपीरियंस कोर्ट वाला नहीं होता, बट इट्स जस्ट रिलेटेड टू फाइल्स एंड व्हाट टू अंडरस्टैंड, मैं इसमें ये कहूँगा कि टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस और टू इंटरप्रेट द लॉ कि ये हमारे फेवर में या हमारे अगेंस्ट में है, कि हम लॉ को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, ओके अथॉरिटी कैसे इंटरप्रेट करेगी। तो Yes, उसका एनालिसिस ऑफ द लॉ इज इन माय डोमेन डेफिनेटली। यस सर। मतलब वो हम अथॉरिटीज के पास जाने से पहले जो स्ट्रेटेजी बनानी है, स्ट्रेटेजी बिल्डिंग इज द मेन थिंग दैट वी स्ट्रेस ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे विल प्लान द स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू द केस कि उसमें कितना स्टेक इन्वॉल्व है, किसी हम जूनियर रिसोर्स है, अगर हमारे पास सीनियर काउंसिल को लेके जाना है, डेजिग्नेटेड काउंसिल को लेके जाना है, क्योंकि मैटर इज़ अ वेरी हाई स्टेक, तो उसके अकॉर्डिंगली बोर्ड जो है स्ट्रेटेजी प्लान करता है हर केस के लिए। yes. कहीं अप्रोच होती है कि नहीं यार इसमें लिटिगेशंस को हमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, इसको हम स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हैं, इसमें वीक फुटिंग पे हैं, तो वी शुड नॉट कंटिन्यू। तो दैट स्ट्रेटेजी और द डिसीजन दे विल टेक विद द हेल्प ऑफ सीएस। हाँ, तो उसमें कंपनी सेक्रेटरी और लॉयर का साथ में कंबाइन होकर फिर बोर्ड के पास रहता है। सो सर द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि सिंस यू हैव सेड कि लॉयर्स भी कंपनीज में होते हैं, सो मतलब एक लॉयर का एक्चुअली कंपनी में क्या रोल है, वो कैसे समझा जाए? नहीं, देखो यही चीज़ है कि जो लॉयर का रोल है ना कि कंपनी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। क्योंकि कंपनी जब एक बिजनेस को रन करती है तो दैट कंपनी इज एक्सपोज टू सो मेनी रिस्क, कि कंपनी कभी भी किसी से डील कर रही है, एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट की ड्राफ्टिंग है, दैट इज अ वेरी मेजर थिंग इन एवरी कंपनी। कि आप जब किसी भी सप्लायर या कस्टमर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें आप कंपनी का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, वो एक बहुत बड़ा एरिया होता है कॉन्ट्रैक्टिंग का, दैट इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी कंपनी। और उसके लिए डेफिनेटली हमें, क्योंकि हमारी एक लीगल टीम एज अ कंपनी की होगी और जो सामने अगर क्लाइंट है या सप्लायर है उनकी एक लीगल टीम होती है, क्योंकि उन्होंने एक लीगल ड्राफ्टिंग करी है। तो दैट कम्युनिकेशन विल हैपन बिटवीन द टू लीगल टीम कि ये हमारे क्लॉजेज हैं, इसके पीछे ये रेलिवेंस है, हम अपने प्रोटेक्शन को करेंगे, सामने वाला अपने प्रोटेक्शन करेंगे। तो एक कॉन्ट्रैक्ट एक मेजर पार्ट आता है। उसके बाद जब कंपनी कोई भी बिजनेस को प्लान करती है कि कोई भी बिजनेस यूनिट सेटअप कर रही है किसी भी स्टेट के अंदर, तो वहाँ पर जितने भी अप्रूवल्स लेने हैं अथॉरिटीज़ के, यस सर, तो उसके अंदर एक लीगल पर्सन हेल्प करता है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि अगर आप कोई ऐसी यूनिट लगा रहे हो जहाँ पे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है, तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड आपने सारे अप्रूवल लेने हैं। अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, जिसके लिए स्पेसिफिक अप्रूवल किसी अथॉरिटी का है, yes, तो क्योंकि बिजनेसमैन का देखो पर्पस या उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, उसको बिजनेस करने का आइडिया है कि वो अपॉर्चुनिटी देखता है कि यार यहाँ पर मेरे पास स्कोप है। yes, sir. अब दैट बिजनेसमैन नीड अ लीगल सपोर्ट कि यार कल को आगे चल के बिजनेस में कोई ट्रबल ना है, तो वो लीगल जो प्रोफेशनल होगा कंपनी के अंदर, दैट विल एक्ट एज अ पिलर फॉर बिल्डिंग द कॉर्पोरेट टू अ नेक्स्ट लेवल। क्योंकि अगर कंपनी का फाउंडेशन वीक हो गया, अगर कोई भी कंपनी ने काम किया ऐसा जिसके अंदर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस आए, उनकी कोई नॉन कंप्लायंसेस हैं, तो दैट विल हैम्पर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। यस सर। तो लीगल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर इन एवरी कॉर्पोरेट, जिसके बेसिस पे कॉर्पोरेट की ग्रोथ डिफाइन होती है। क्योंकि हर कंपनी पे, आप अच्छी कंपनी पे जहाँ पर भी आप जिस भी कंपनी का नाम लेते हैं, वहाँ पर कस्टमर भी ये चीज़ को एक्नॉलेज करता है यार इनका लीगल कितना स्ट्रांग है। यस सर। तो वो लीगल जितना स्ट्रांग होता है कंपनी का, उसके कॉन्ट्रैक्ट में एम्बिग्यूटी कम होंगी, उनके में क्लैरिटी ज़्यादा होगी, तो फिर जो चांसेस ऑफ डिस्प्यूट हैं उससे बचते हैं। तो उनका फोकस टुवर्ड्स बिजनेस की ग्रोथ के लिए ही रहता है। ओके, सो basically it is also one of the pillars of a corporate, one of the strongest pillar, because everything, if you say there are different functions, finance, marketing, sales, production, or you can say any back office, accounting, so all these functions in a corporate normally
they will interact with legal also, because in every function there are certain legal points definitely आते हैं. मार्केटिंग वाला सोचता है यार मेरे को मार्केटिंग ये करनी है जाकर, तो मैं यहाँ पर क्या क्या मार्केटिंग के अंदर ब्राउचर में क्या क्या चीज़ें देनी है, स्टैंडर्ड ऑफ वेट, मेजर, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट आ जाता है कि उसके अंदर आपको ये सारी चीजें डिस्क्लोजर देने हैं. मार्केटिंग में आप वर्ड्स और कई बार ट्रेडमार्क का इशू, कहीं पर हाँ कंपटीशन कमीशन का कहीं कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा. कहीं पर आप किसी मीटिंग के अंदर जा रहे हैं कि अगर नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप मान लो किसी एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कोई आयरन एंड स्टील या मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी पेपर एसोसिएशन है, अगर आप उस एसोसिएशन में जाके मार्केटिंग की जो मीटिंग्स होती हैं उनमें जाकर आप कुछ भी बोल रहे हैं तो कंपटीशन कमीशन तो नहीं अट्रैक्ट होगा. तो वो सारी चीजें बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लीगल बैकिंग चाहिए. क्योंकि प्रमोटर को इतनी नॉलेज नहीं होती सारी चीजों की. यस सर. तो वो हर एक्शन को लेने से पहले एक बार अपनी लीगल काउंसिल से वेट करवाता है कि यार ये चीज मैं करने जा रहा हूँ, इस मतलब क्या मेरे को चीजों का ध्यान रखना है, क्या मेरे डूज एंड डोंट्स हैं. सो व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग बाय योर वर्ड्स कि other than a pillar, legal department is also a shield to the corporate. बिल्कुल, बहुत सही आपने इंटरप्रिटेशन निकाली है कि ये वो कंपनी को पूरा प्रोटेक्ट करके चलते हैं कि भी कहीं पे भी कोई भी नॉन कंप्लायंस में इनको मतलब आज की डेट में बड़ा गवर्नमेंट जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है, आईटी को यूज़ कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रही है, तो बड़ी जल्दी सब चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं. और एक बार कोई चीज़ न्यूज़ बैड स्प्रेड होती है तो वो बड़ी जल्दी फैलती है और वो बिजनेस को डैमेज करती है, फ्यूचर ग्रोथ को. यस सर. बहुत ध्यान से चीज़ों को चलना पड़ता है कि हर एम्प्लॉइज है, मान लो एचआर है, हर कंपनीज के अंदर एम्प्लॉइज होंगे. अब एचआर के भी बहुत सारे रूल्स हैं. यस सर. मतलब अगर मैं कहता हूँ किसी भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर मोर देन 50% लॉज एचआर से रिलेटेड होते हैं. कि आपने आपके कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है, मेन लेबर है, कितने वर्किंग आवर्स होंगे, कब उनको लीव देना है, कहीं पे भी एम्प्लॉइज के ऊपर फीमेल एम्प्लॉइज हैं, उनको क्या क्या, हर जगह रूल्स लॉज एप्लीकेबल्स हैं. तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए एक लीगल बैकिंग चाहिए जो कंपनी को सपोर्ट करती है इन ऑर्डर टू कंप्लाई द लॉ. ओके, तो सर द पर्सन हु वांट्स टू अप्लाई एज अ लॉयर इन अ कॉर्पोरेट एंड नॉट जस्ट जो हम लोग सुनते हैं कि लीगल कॉर्पोरेट्स but a proper MNC type company, so what all skills a law student or a lawyer must have to become a part of corporate as a? देखो, कॉर्पोरेट में काम करने के लिए वही सेम चीज़ें हैं जो किसी भी लॉयर को अगर प्रैक्टिस के अंदर भी अगर वो जाता है तो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल, मतलब अगर मैं पॉइंट आउट करूँ, लिस्ट डाउन करूँ, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, दैट इज़ अ मस्ट थिंग कि भी वो उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग चाहिए कि वो चीज़ों को कोरिलेट कर पाए, चीज़ों को इंटरप्रेट कर पाए किसी भी चीज़ के ऊपर. उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स, वो डेफिनेटली उसको हर जगह चाहिए. मैं मतलब कोई अलग से नहीं बता रहा कि कॉर्पोरेट के लिए डिफरेंट है और उसको अपनी अगर प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए डिफरेंट है. तो अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी तभी वो चीज़ को समरी बनाकर बोर्ड को कम्युनिकेट कर पाएगा इफेक्टिवली. उसका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो जाएगा. राइटिंग स्किल्स डेफिनेटली, क्योंकि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस जाते हैं, हर जगह रिप्लाई जा रहा है, ड्राफ्टिंग जा रही है, पिटीशन जा रही है, एप्लीकेशन जा रही है कॉर्पोरेट के बिहाफ पे. ही शुड वेट कि भी ईच एंड एवरी कम्युनिकेशन और अ इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन दैट इज गोइंग आउट ऑफ द कंपनी. तो क्या कंपनी की वेबसाइट पे डिस्प्ले हो रहा है, क्या कंपनी की तरफ से कम्युनिकेशंस जा रहे हैं, हर कम्युनिकेशंस के लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं. तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, इंटरप्रिटेशन डेफिनेटली होना चाहिए, उसकी ड्राफ्टिंग डेफिनेटली उसकी अच्छी होनी चाहिए. और उसकी अप्रोच है जैसे ऑनरशिप, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर वो ऑनरशिप डेफिनेटली चीज़ चाहिए कि अगर ये चीज़ कोई भी काम करना है तो उसको कंप्लीट 360 डिग्री देखना है. yes. कई बार मतलब चैलेंजेस क्या आते हैं कि भी आपने सिर्फ एक एरिया, एक ट्रांजैक्शन का आपने सिर्फ एक लेग स्टडी किया, तो उस ट्रांजैक्शन को 360 डिग्री स्टडी करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको डिफरेंट परमोटेशन से देखना, उसका वर्स्ट केस सिनेरियो देखना. जैसे हम कभी भी बिजनेस प्लानिंग करते हैं, प्रमोटर भी करते हैं, तो वो कोशिश करते हैं प्लान ए प्लान बी अपना बना के चलते हैं कि अगर ए सक्सेसफुल नहीं हुआ तो बी. yes, तो ये लॉयर का भी यही चीज़ें हैं कि भी वो प्लान ए बना के चलता है, फोकस प्लान ए पे रहेगा डेफिनेटली कि प्लान ए सक्सीड हो जाए. लेकिन इन केस प्लान ए नहीं हो पाता तो क्या प्लान बी है. okay. तो उसके पास में मतलब सॉल्यूशन जो है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, वो डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट के पास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है.
जब वो बिजनेस को करती हैं तो ये भी प्रॉब्लम है कि अप्रूवल चाहिए, अथॉरिटीज़ हैं, लिटिगेशंस हैं, तो उनको चाहिए कि यार वो एक्सपेक्ट करती हैं एक लॉयर से कि दीज आर माय सॉल्यूशन प्रोवाइडर, कि यार मैं एक प्रॉब्लम में ना फंसूं जो प्रोटेक्शन वाली चीज़ है, हाँ जी। और अगर मैं कभी फंस गया तो ये मेरे को बाहर निकाल लेंगे। ओके, सो क्या इसके लिए मतलब लाइक व्हेन वी गो इनटू अ लिटिगेशन, सो अ लॉयर मस्ट हैव अ रजिस्ट्रेशन लाइसेंस विद द बार काउंसिल, सो डज दिस आल्सो रिक्वायर्स अ रजिस्ट्रेशन लाइसेंस विद द बार काउंसिल? नहीं, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एनी, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेट in any court or any law without registration. Also in most of the companies they keep the lawyer, or you can say the LLP pass out, on their payrolls, full-time payrolls. They have a full-fledged working, and they engaged a lawyer, or you can say advocate, for the respective cases in the respective courts or respective jurisdiction. कंपनी का जो लॉयर है वो डेफिनेटली प्रेजेंट होगा फॉर एवरी डेट ऑफ हियरिंग इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द कंपनी. इफ एनी आंसर और एनी अपीयरेंस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कंपनी, तो देन दैट लॉयर इज रिप्रेजेंट दैट कंपनी बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ without having registration in bar council. Okay, so it is a point to be noted that there is a certain field where you don't require your registration with the bar council, and still you can have a great career ahead of you. Definitely. Yeah, correct. This is the requirement in a corporate. So I mean that is not a requirement in a corporate कि आपको register होना जरूरी है. नहीं. They will just look at the personal skill set of that person, and basis that they will consider for appointment. Okay, so as a full-time employee. Okay, so the term you referred the skill set. So if you are an employer, what kind of skills would you look into a person who is applying as a lawyer's job, or what you look into a CV? What kind of CV does that person have? Definitely that CV I have already explained, the communication skill set. The problem I should मतलब get these feelings while interpreting the CV, while reading the CV. तो उसके अंदर CV के अंदर उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं, कितना उसने मतलब उसकी जो अप्रोच है ऑफ एनी प्रोजेक्ट, इफ़ ही हैज़ डन एनी प्रोजेक्ट इन द पास्ट ड्यूरिंग मे बी इन द इंटर्नशिप और एनीवेयर, तो उस प्रोजेक्ट में उसका क्या रोल था. अब उसमें रोल के अंदर आपने उस लॉ को कितना, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, वो पूरी चीज़ को पढ़ता है या सिर्फ उसका एक पार्ट को देख रहा है. तो उसकी जो अप्रोच है दैट मैटर अ लॉट. वो CV कम मतलब CV के अंदर डेफिनेटली स्किल सेट्स जो हैं उसके अप्रोच या एक्सपीरियंस से पता चल सकते हैं, लेकिन वाइल इंटरव्यूइंग तो दैट दीज आर द क्वेश्चंस basis which we can take a decision of hiring selecting any person or shortlisting any person for the required job. Okay, so I think we have a good information regarding what a person can do in a corporate field, what a lawyer can do in a corporate field. So sir, moving towards our last question, what are the words of wisdom or any motivation you can give to young lawyers or the law students if they want to pursue in the corporate world? Basically I would say मतलब that is applicable for every professional. They must build a habit of reading, listening and understanding or interpreting, analyzing before coming to any conclusion, because in some of the cases I have seen कि without going into the deep they will come out with the conclusion कि यार ये चीज़ तो ऐसे ही होगी. लेकिन कई बार क्या होता है कि लॉ में जितना मैंने एक्सपीरियंस देखा है, एवरी टाइम व्हेन यू रीड द लॉ ना यू विल गेट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव अलग अलग अगर होता है आपका तो इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो जाती है. आपने एक लॉ को एक इंटरप्रिटेशन से पढ़ा है, ज़रूरी नहीं है वही सेम चीज़ हर जगह एप्लीकेबल होगी. तो कई बार हम बड़े एंथुजियाज्म में बहुत जल्दी कंक्लूजन पे आ जाते हैं.
तो मेरी एडवाइस डेफिनेटली यही है कि भी जो आपकी हैबिट जो आप डेवलप कर रहे हो रीडिंग की, अंडरस्टैंडिंग की, एनालिसिस की, वो आप डीप रखो। किसी चीज़ पे एकदम बड़ी जल्दी क्विकली डोंट कम टू एनी कंक्लूजन। बिफोर कमिंग टू कंक्लूजन जस्ट रीड वट एवर इज रिटन इन द लॉ। इफ देर इज एनी केस लॉज रेफर टू दैट इन विच मे बी कोर्ट जो जितने भी ऑर्डर्स आते हैं उसमें काफ़ी डिटेल्ड ऑर्डर आते हैं, वो जस्ट एक सेक्शन या लाइन की रेफरेंस से कंक्लूड नहीं करते, वो उसके पीछे उसकी रीजनिंग देते हैं कि भी इस कंक्लूजन पे आने से पहले उनकी रीजनिंग क्या थी, वो बैकग्राउंड क्या था। तो वो बैकग्राउंड बड़ा मैटर करता है हर चीज़ के अंदर। तो आज के टाइम में थोड़ा सा इन चीज़ों पे फोकस, ये स्किल सेट अगर होती हैं आपकी, डेफिनेटली बाकी स्किल सेट जो मैंने बोले हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स है, ड्राफ्टिंग स्किल सेट है, और आपके जो आप इंटरप्रिटेशन लेते हो, इंटरप्रिटेशन के स्किल सेट आ जाएंगे। इसके अंदर आपका जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, कई बार मतलब क्या होता है कि भी हम प्रॉब्लम को सिर्फ एक चीज़ पे आके स्टक हो जाते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, ये काम नहीं हो सकता। तो वो कॉर्पोरेट को मतलब कई बार ये चीज़ डेफिनेटली दे एक्सपेक्ट कि यार काम को करने के तरीके बताओ, ना करना तो सबसे आसान है कि भी यार ये काम नहीं होगा, ये तो लॉ में रिस्ट्रिक्शन है, ये आप कम नहीं कर सकते। yes, sir. वो तो फिर अगर ये चीज़ सुनेंगे तो कॉर्पोरेट आगे काम ही नहीं कर पाएंगे। उनको ये होता है कि ये काम कर सकते हो लेकिन आप इन चीज़ों का ध्यान रखो। तो दे वांट दैट काइंड ऑफ सोल्यूशन, दे एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम अ प्रोफेशनल, आई वुड से कि भी जो मतलब सॉल्यूशन के टुवर्ड्स जिनकी अप्रोच है कि वो प्रॉब्लम तो उनको पता है कि हर काम को करने में इंडिया के अंदर आज के डेट में हर काम करना है तो हर जगह चैलेंजेस हैं। yes, sir. लेकिन दे एक्सपेक्ट कि ठीक है जी ये काम आप कर सकते हो लेकिन आप इन चीज़ों का ध्यान रखो, इस काम को करने के ये तरीके हैं, ऐसे हैं। वो अप्रोच के साथ में दे विल लाइक दैट पर्सन कि भी दैट विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। वो ओनरशिप अप्रोच है, वो ओनरशिप अप्रोच है। बिल्कुल। ओके, सो आई थिंक आज की वीडियो एक अलग लेवल पे नॉलेजेबल रही है। एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड दैट इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, without having a license to practice, without registering with bar council, you can still have a good career ahead of you. You can act as a shield to a company, you can act as a problem solver, you can act as a path maker to the company as well. Definitely, each and every business plan, if you say, जब भी हम स्ट्रक्चरिंग करते हैं कंपनीज के अंदर, कोई भी दो कंपनीज का आपस में मर्जर कर रहे हैं, कुछ बिजनेस अमेलगमेट हो रहे हैं, अगर आप जितना भी ऑनलाइन बिजनेस में जा रहे हैं, ई कॉमर्स में जा रहे हैं, हर जगह बिजनेस प्लान के अंदर जो बिजनेस प्लान बनता है उसके अंदर डेफिनेटली हर प्रोस्पेक्टस में लीगल जैसे डिस्क्लेमर आता है। म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं, लीगल डिस्क्लेमर है। हाँ जी। तो हर जगह लॉ है, हर जगह लीगल है सारी चीज़ें कि भी आप उसको, लेकिन दैट विल हेल्प इन ऑर्डर टू ग्रो द बिजनेस। सो आई होप आप सबको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, एक नया करियर पाथ दिखा होगा दोज हु आर कन्फ्यूज कि अपना कॉलेज ख़त्म करने के बाद कहाँ जाएं। सो दिस इज़ ऑल्सो करियर पाथ फॉर यू। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड सर थैंक यू फॉर गिविंग अस योर ऑस्पिशियस टाइम। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू ऑल। ओके।